जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। મારા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આશીર્વાદ છે કે આ જીવતું દ્રષ્ટાંત આપણા સમક્ષ હતું તે અત્યારે આપણે એને ભજવી બતાવ્યું છે બહુ સારી રીતે. એમના પ્રસંગો જે એમના જીવનમાં બનેલા તે અદ્ભુત થયા છે. મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે અને આગળ ઉપર જે થશે તે સંપૂર્ણ જ્ઞાન પછીની દશાના બધા પ્રસંગો હવેથી જયેન્દ્રભાઈ બતાવી અને પૂર્ણ થયા પછી આખું જીવન પૂર્ણ થયા પછી જ બીજા નૃત્ય નાટિકાના બધા આપણા કાર્યક્રમો થયા કરશે એવું સજીવનની આજ્ઞા છે. તો ખૂબ ધન્યવાદ છે આપ સર્વને. દાદાજી, સજીવબેનને એક ટેવ છે એવી કે જે પોતે એક વસ્તુ હાથમાં લીધી એ પૂરી કરીને છોડે પછી બીજું પ્રોજેક્ટ છે. એટલે પ્રોજેક્ટ એવી રીતે પહોંચી ગયો કે હવે આ પ્રોજેક્ટ પકડે છે એને પૂરેપૂરો કરીને પછી બીજો તમે પરમિશન આપશો તો એના પછી આગળ અમે ઘણું દાદાજીનું બી બનાવવાના છે. બહુ સુંદર આ રજૂઆત થઈ છે. દાદા ભગવાનનું આ કળિયુગમાં ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપ જીવન જે મુખ્ય પ્રસંગો બહુ સારી રીતે બતાવ્યા છે, ઘણા સુંદર રીતે, ઘણી સુંદર રીતે. અને આ બધાને બાળકોને પણ અને જયેન્દ્રભાઈને તો ખાસ કવિરાજ જાણે છે સારી રીતે કે આમાં સ્ક્રિપ્ટ લખતા સ્ક્રિપ્ટ બધી રીતે અને એમાંથી અમને જે અનુભવ ને એમને સ્વાદ આવે છે શું બધા એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. મારા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આશીર્વાદ છે કે આ જીવતું દ્રષ્ટાંત આપણા સમક્ષ હતું તે અત્યારે આપણે એને ભજવી બતાવ્યું છે બહુ સારી રીતે. એમના પ્રસંગો જે એમના જીવનમાં બનેલા તે અદ્ભુત થયા છે. મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે અને આગળ ઉપર જે થશે તે સંપૂર્ણ જ્ઞાન પછીની દશાના બધા પ્રસંગો હવેથી જયેન્દ્રભાઈ બતાવી. દાદાજી, આપનું એક હતું કે દાદા ભગવાનનો જે મેસેજ છે એ મેસેજ લોકોને મળે અને આ એવું વિજ્ઞાન મળ્યું છે કે આખું અંદરનું જીવન ફેરફાર થઈ જાય. આ આપનું કહેવું એમાં બહુ બધી વાર જયેન્દ્રભાઈ જોડે આ બાબતમાં વાતચીત થતી અને એમણે ખૂબ બધે બરોડાથી જૂના મહાત્મા ઇવન રસિક કાકાએ પણ ખૂબ આમાં મહેનત એમની હતી અને આ ડ્રામામાં જે જીવંત કર્યું આ દાદા ભગવાન આપણે નાટ્ય સ્વરૂપે જોયું અને એમાં જે જીવંત બનાવ્યું એ અમે સૌ મહાત્માઓ આપણે એકી સાથે જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણીને તાળીઓથી વધાવી. દરેક આર્ટિસ્ટો બધાને અમે મળવા ગયા દાદાજી ઇન્ટરવ્યુમાં કે ઇટ્સ રિયલી વન્ડરફુલ. તમે જે પ્લે કર્યો છે ખાલી પ્લે કરવા પૂરતો નથી કર્યો પણ તમે પણ તમારું હાર્ટ મૂક્યું અને ઇન્ટરવલ સુધી જોવામાં એવો આનંદ આવ્યો. એક પરિવારના થઈ ગયા. ભલે વર્ષમાં એકવાર મળે છે પણ એક પરિવારના જ્યારે મળે છે ત્યારે આ લોકો એવી મહેનત કરી છે, આ લોકોએ હાર્ટ પૂર્યું જે ગયા વર્ષ કરતા વખતે બહુ મજા આવી દાદાજી. અને જયેન્દ્રભાઈને ખૂબ ખૂબ મહાત્માઓ વતી જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. जो भी मिले उसका भला हो यही दादा का काम है. जीना इसी का नाम है. हाँ तो कहिए मैनेजर साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? क्या बताऊं सेठ जी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. क्यों, क्या हुआ? देखिए सेठ जी, देखिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक
काम पूरा हो गया था, लेकिन एक साहब ने उस काम को नापास कर दिया। अपना काम तो अच्छा हुआ था, फिर भी नापास कर दिया। हाँ, वो साहब ने बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। करीब करीब 10-15 हजार का नुकसान हो गया है। ओ हो, अपनी कंपनी को इतना बड़ा घाटा हुआ। ये साहब ने तो क्या नुकसान करवा दिया। वो तो अपना हिसाब होगा, इसलिए ये नुकसान है। लेकिन सेठ जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। ये बात सुनकर मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। अब क्या किया जाए? ठहरो, ये 10-15 हजार मेरे अकेले के गए या साथ में मेरे पार्टनर के भी गिने जाएंगे? ऑफ कोर्स सेठ जी, पार्टनर के भी गिने जाएंगे। अच्छा, इसमें पार्टनर के कितने गए? हिसाब करके बताता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। ऐसे गिना जाए तो इस घाटे में पार्टनर के 5 बेटे भी साझेदार हुए, और मेरे घर में हीरा है, वो भी तो साझेदार हुई। तो मेरे हिस्से में बहुत थोड़ी ही चिंता रही। तो फिर मैं अकेला क्यों इतनी सारी चिंता लेकर घूमूं? सेठ जी, आपका आपके पार्टनर के साथ कभी मतभेद हुआ है? नहीं, कभी नहीं, और कभी होगा भी नहीं। बस सदा सर्वदा हम दोनों में ऐसा ही प्रेम बना रहे, यही कामना करता हूं। मैनेजर साहब, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग की बात बताता हूं। जी, जरा सुनिए। 42 की साल में अपनी लोहे की फैक्ट्री थी। उसमें एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे। जी। कंपनी का नाम था बिटको इंजीनियरिंग कंपनी। उस समय सरकार हमें 11 रुपए के भाव से लोहा देती थी। बाजार में 32 का भाव चलता था। मेरे पार्टनर कॉन्ट्रैक्टर के धंधे में से सरकार को फूट के ऊपर आना 2 आना देते थे। बाहर 1 रुपया भाव चलता था, इसलिए धंधा जमता गया। ऐसे करते करते फैक्ट्री में लोहा जमा होता गया। इतने में एक दलाल आया। साहब, इतना सारा माल है तो हमें दे दीजिए, क्या गलत है? नहीं, हम काला बाजारी नहीं कर सकते। आप नहीं करना, मेरे जैसे को पेट पालने की सुविधा कर दीजिए। काला बाजार में 32 का भाव है, वो आप ना लें, लेकिन मेरे लिए कुछ फायदा हो ऐसा कुछ कर दीजिए। उस दलाल पर तरस खाकर कांतिलाल और हमने तय किया कि उस दलाल को कुछ मिले और हमें भी कुछ मिले। आखिर हमने उस दलाल को 25 रुपए के भाव से माल दे दिया। बाजार भाव 32 का था, तो उसके बदले दलाल 35 ले रहा था। हमें पता चला कि वो 35 के भाव से बेच रहा है। ये तो गलत बात है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। लोगों को वो लूट रहा था। इससे अच्छा हम लोग ही सीधा दे देते, और हम लोगों ने उस दलाल को माल देना बंद कर दिया। बस डायरेक्ट धंधा करने लगे। ऐसा करते करते हमारे पास काले बाजार के बहुत सारे रुपए आते गए। उसके बाद संस्कारी माँ बाप का संस्कारी बच्चा गलती से चोरी कर लेता है, लेकिन उसकी नींद हराम हो जाती है। गलत तरीके से आए हुए पैसे चुभते हैं, दर्द देते हैं। उसके रोम रोम में दर्द होता है। ऐसे ही मुझे भी दर्द होने लगा, तो हमने पार्टनर से कहा, कांतिलाल, हमारे पास काले बाजार की जो मूड़ी जमा हुई है वो सब चली जानी चाहिए। जल्द से जल्द इसका निकाल होना चाहिए। ऐसे रुपये बहुत गलत है। और देखते ही देखते 5-7 साल में ये सारे रुपये चले गए। तब जाके मेरा मन शांत हुआ। वाह सेठ जी, वाह, आप धन्य हैं। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत है। गलत तरीके से आए हुए रुपयों का आपने अपने लिए उपयोग नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक वो साहब हैं जिन्होंने अपना काम अच्छा होने पर भी नापास किया। सेठ जी, मुझे तो लगता है कि उन्होंने जरूर रिश्वत ली होगी। जो लोग रिश्वत लेकर, मिलावट करके, चोरी करके अपनी बुद्धि से जितना लूट सके उतना लूट लेते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। सेठ जी, फिर भी ऐसे लोग समाज में सुखी दिखते हैं। सच पूछो तो उनके जितना दुखी
कोई नहीं होता। उनकी जिंदगी डर से भरी हुई होती है। रातों को नींद भी नसीब नहीं होती। वो सारा समय प्रेशर में रहते हैं, टेंशन्स में खोए खोए रहते हैं। उनके बच्चे भी चरित्रहीन, संस्कारहीन और व्यसन जैसी बुरी आदतों के चपेट में आ जाते हैं। बीवी कहीं और शौहर कहीं और। उनके लिए इस नरककार से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं रहता। ऐसे लोगों की जिंदगी बाहर से पूनम और अंदर से अमावस होती है। सेठ जी, ये सब लोग रिश्वत का ही नतीजा भुगत रहे हैं। सेठ जी, बाहर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आए हैं। उन्हें वहीं रोको, मैं अभी आता हूं। ठीक है सेठ जी। चलिए मैनेजर साहब, हमारे साथ चलिए और देखिए हमारा नाटक। अंबालाल जी, मैंने सुना कि आपको धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? वैसे आपको कितना लग रहा है? मेरे ख्याल से करीब करीब 1 लाख का घाटा तो हुआ ही होगा। पूरे 3 लाख का हुआ है। पूरे 3 लाख का घाटा? हाँ, 3 लाख का घाटा। क्या करें, नुकसान हुआ है तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए ये सब, चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए। सुनो भाइयों सुनो, अरे सुना आपने, अंबालाल को धंधे में 3 लाख का घाटा हुआ है। हाँ, अब तो उनके लिए ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है। बहुत अच्छा हुआ, अब मैं चैन से खाना खा सकूंगा। खाने में स्वाद लगेगा, अब मजा आएगा। बड़ा आया था कॉन्ट्रैक्टर के धंधे में, अब देखो उसका क्या हश्र होता है। वो कैसे? आगे आगे देखो होता है क्या। अरे तुम यहाँ जानकारी हासिल करने आए थे या हमदर्दी दिखाने आए? दोनों, हमदर्दी की हमदर्दी और जानकारी की जानकारी। बाकी तुम तो जानते ही हो, मुझे चटपटी जानकारी में ही इंटरेस्ट है। हमदर्दी तो माय फुट। अंबालाल जी, अपने धंधे में जो नुकसान हुआ है, ये सुनकर तो वो कॉन्ट्रैक्टर खुश हो रहे हैं। वो खुश हो इसीलिए तो मैंने धंधे में 3 लाख का घाटा दिखाया। वो यही जानने आया था कि हमारी हालत बुरे से भी बदतर हुई है या नहीं। इसका मतलब ये कि आपने जो कहा वो सच नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओह, तो ठीक है। 3 लाख सुनकर हमारी तो जान ही निकल गई थी। अरे उसकी तो जान में जान आ गई। तो सेठ जी, दरअसल कितना घाटा हुआ होगा? सिर्फ 50,000 का। अब कहीं गले से निवाला नीचे उतरेगा। हमारे पास 2 प्रकार के इंसान आते हैं, एक ईर्ष्या की आग में जलने वाला और दूसरा हमदर्दी जताने वाला। वे दोनों व्यक्ति अपने घर में चैन से खाना खा सके, यही मेरी भावना होती है। ये स्पर्धा ऐसी वस्तु है कि लोग चाहे वो कर गुजरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो कॉन्ट्रैक्टर अपने बारे में कुछ ऐसा ही सोचता होगा। मुझसे आगे भाग रहा था बेटा, अब देखो पीछे हो गया ना। अब देखना, मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। हाँ, इन लोगों की नीयत ही ऐसी होती है। कैसे हैं अंबालाल भाई? अरे आइए आइए कॉन्ट्रैक्टर साहब, आइए। बहुत टाइम के बाद। हाँ? क्या करें, कॉन्ट्रैक्टर के धंधे में टाइम ही नहीं मिलता। हाँ। आप सुनाइए। हम क्या सुनाएं? अंबालाल भाई, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आपका धंधा बैठ ही गया होगा, कुछ खास नहीं चल रहा, क्यों? हाँ, धंधा है, चला तो चलती का नाम गाड़ी और रुकी तो खटारा। तो क्या
धंधा बंद करना पड़ेगा है? नहीं, अभी तक तो बंद करने की नौबत नहीं आई है। वो कैसे? अब वो तो क्या है कि 7-8 लाख की मिल्कियत में से सिर्फ 3 लाख का ही घाटा हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स खानदानी धंधा जो है। ये मिल्कियत ही धंधे को आगे बढ़ाती है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। देख लिया ना, कौन किसको मात दे सकता है। इसलिए आज से सारे ये द्वेष ईर्ष्या भूलकर केवल अपने काम में ही ध्यान दीजिए। दूसरों से स्पर्धा नहीं करे तो आपके लिए अच्छा है। इंसान को पैसे की भूख और प्रतिष्ठा की प्यास रहती है, इसीलिए स्पर्धा खुद से करो, खुदाई से नहीं। अपनी निष्ठा पर संदेह करो, औरों की निष्ठा पर नहीं। दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करने में जुटे रहो तो हर जगह फायदा ही फायदा होता है। हाँ, ठीक है। चलते हैं, हम चलते हैं, मिलते हैं। वाह सेठ जी वाह, क्या दुम दबाकर भागा है। आपने उसे बराबर समझा दिया। जैसा स्वभाव वैसी बातें। लोग हमारी संपत्ति और विपत्ति पर किस प्रकार नजर रखते हैं वो आपने देख लिया ना। जी सेठ जी, इन लोगों को पता नहीं, स्पर्धा से शायद धन मिलेगा किंतु समाधान नहीं। सेठ जी, अपना जो बिजनेस है इसमें हम कुछ सीक्रेट रखते हैं? नहीं, जैसा है वैसा बता देता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? जिसको लोन के रूप में रुपया लेना होता है वो धंधे की बात छुपाते हैं, और हमें तो लोन के रूप में कुछ भी लेना नहीं है। लेकिन सेठ जी, फिर भी हमारे बिजनेस में कोई रुपये रोकना चाहे तो? अगर वो रुपये रोकना चाहता है तो सब बात हम उसके सामने खुली कर सकते हैं। हमारा तो ओपन टू स्काई जैसा है। इसलिए आपने उन सेठ जी को कह दिया था कि इस साल हमें 20,000 का घाटा हुआ है। हाँ, सच कह देना अच्छा रहता है। ये सुनकर उसे ना देना हो तो ना दे, फिर भी देना चाहता हो तो उसकी मर्जी। हमारा धंधा पारदर्शक है। लोगों को घाटा भी बता देता हूँ और मुनाफा भी दिखा देता हूँ। सेठ जी, ऐसा कहना जरूरी होता है क्या? नहीं, लोग अगर पूछते हैं तो ही बताता हूँ, नहीं तो नहीं। बड़े सेठ जी का कोई सुझाव? मेरे पार्टनर कांतिलाल ने मुझे कभी नहीं कहा कि घाटे की बातें क्यों करते हो। अच्छा, ये सुनकर लोग अपने धंधे में पैसे लगाएंगे ही नहीं। उससे फायदा? जिससे अपना कर्जा कम होगा। वाह सेठ जी वाह, आपका दिमाग काबिले तारीफ है। बिजनेस करना कोई आपसे सीखे। हरिया, ओ हरिया, अरे बहुत ही बुरे दिन आ गए रे। का हुआ बावरे? अरे हरिया, अब का बताई, अपने ही धंधा में 2 पैसा कमाओ और 4 पैसा गवाओ, ऐसी हालत आ गई। हाँ भैया, जो तुम कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन का करी, कोनो उपाय है का? सब है का तई है हाल है। अरे हरिया, अब तो भगवान छप्पर फाड़ के दई देना, तब ही करेजवा में ठंडक पहुँचेगी। हाँ बावरे, एकदम सही कह रहे हो। हमरा मनवा भी यही कहा था, जो करेगा बस ऊपर वाला ही करेगा। का हो भैया, का बतियाए रहे हो? तुम भी तो हमारी तरह टकवा ही चलावत हो, तो फिर इतना खुश काहे हो? तुम्हें कौनो लॉटरी वॉटरी लग गई है का? अरे मंगल, अपने भाग में लॉटरी कहाँ भैया, बस ऐसे ही बतियाए के जरा खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। अरे वाह रे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमका भी थोड़ी खुशी दे दो तो हम भी खुश हो जाएं। अब हमारी हालत एक तरफ और हमारी खुशी दूसरी तरफ, तो बोलो धनिया, का चुनोगे? ये धनिया तो खुशी ही चुनेगा। बस तो अंदर वाले को खुश रखो, बाहर वाला अपने आप खुश हो जाएगा। अरे ऐसन बतिया है तो हमारी जिनगानी पर गाना बजाना और कुछ ठुमका भी हो जाए। हाँ हाँ, तो हो जाए। हाँ, हो जाए। तो भैया बोलो, सियावर रामचंद्र की जय।
पे चलाए मजे लूट के, हाँ मजे लूट के, उसके संग जिंदगानी सरपट सर के, हो उसके संग जिंदगानी सरपट सर के। ट्रक सड़क पे चलाए मजे लूट के, हाँ मजे लूट के, उसके संग जिंदगानी सरपट सर के, हाँ उसके संग जिंदगानी सरपट सर के। सड़क पे चलाए मजे लूट के, हाँ मजे लूट के, उसके संग जिंदगानी सरपट सर के, हाँ उसके संग जिंदगानी सरपट सर के। चले तो घर में चूल्हा जले, ओ गोरी ट्रकवा चले तो घर में चूल्हा जले। परिवार पले जब ये ट्रकवा चले, हाँ परिवार पले जब ये ट्रकवा चले। हर रोड पे चले, हर मोड़ पे चले, रास्ते का संकट चुटकी में टले। हर रोड पे चले, का संकट चुटकी में टले। हो रात दिन का सफर है चलो संभल के, हो रात दिन का सफर है चलो संभल के। सबका जीवन सुखी हो दुआ करते, ओ सबका जीवन सुखी हो दुआ करते। सड़क पे चलाए मजे लूट के, हाँ मजे लूट के, उसके संग जिंदगानी सरपट सर के, हाँ उसके संग जिंदगानी सरपट सर के। राम हो राम हो राम हो जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम सीताराम। सीमेंट की ट्रक, ईंट की ट्रक, रेत की ट्रक, स्टील की ट्रक, तुम सब लोग सुनो। तुम्हें एक फेरे का मिलता है, उससे डबल रुपया हम देंगे। ऊपर से खाने पीने के लिए भी रुपया मिलेगा। घर पर बीवी बच्चों के लिए नए कपड़े भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारा काम बड़ी होशियारी से करना होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सेठ जी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, पुलिस भी आएगी, पूछेगी भी, तो कोई मुंह नहीं खोलेगा, कोई मुंह नहीं खोलेगा। जिसने मुंह खोला वो तो गया ही समझ लो। उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चों का भी राम नाम सत्य हो जाएगा। अपनी खैर मनानी हो
तो मैं जैसा कहूं वैसा करना, वरना ड्राइवर, हर एक माल के 4-4 ट्रक भर के तैयार रहेंगे, पर ऑफिस से चालान में बताई गई जगह पर सिर्फ 3-3 ट्रक जाएंगे, यानी कि 12 ट्रक। बाकी के 4 ट्रक? अलग अलग माल से भरे हुए 4 ट्रक इन सब ट्रक के पीछे पीछे चलते रहेंगे। बीच राह पर 2 मोड़ आएंगे तो तुम लोगों के 4 ट्रक दूसरे मोड़ से बताए गए पते पर पहुंच जाएंगे। जहां सामान खाली करोगे वहीं पैसे मिल जाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है। ये सब ठीक से चला तो हर महीने में 4-6 बार दिवाली मना सकोगे, समझे? भाई जी ठीक है। ऐसी दिवाली मनाने का मौका भगवान सबको दे। हाँ। सबकी छोड़। हाँ। अपनी फिक्र कर। भाई जी, हमें क्या पड़ी है फिक्र करने की? आपने जिसके सर पर हाथ रख दिया मानो उसके वारे न्यारे हो गए। हम भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं भाई जी। अपने बड़े सेठ तो मांगने पर भी ज्यादा देने वाले नहीं हैं। हम ड्राइवरों की हालत हमेशा बेचारों जैसी ही रहती है। भाई जी, हम भी अच्छी तरह जीना चाहते हैं। हाँ, हमें भी इसी समाज के साथ रहना है। हम भी सुखी होना चाहते हैं। हमारे बाल बच्चों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है ना। अब ये काम गलत ही सही, लेकिन हमारे फायदे के लिए जरूरी है भैया। भैया, जमाना ही ऐसा है कि ये सब करना जरूरी है। हम भी सुखी और आप भी सुखी। ठीक है, हम खुश तो तुम खुश, वरना हाँ तो चलो सब काम पर लग जाओ। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं, ऐसे रहना होगा, समझ गए? जी भाई जी, समझ गए। सेठ जी, चालान के हिसाब से सब माल बराबर भेजाए, लेकिन यहाँ सामान कम दिखाई दे रहा है। आज ही ऐसा हुआ है या इसके पहले भी हुआ है? सेठ जी, ये कई टाइम से हो रहा है। हर एक माल में एक दो ट्रक का घपला हो रहा है। इस बार तो 4 ट्रक का घपला हुआ है। ठीक है, नाइट वॉचमैन को बुलाओ। जी सेठ जी। वॉचमैन अभी आया। जी सेठ जी। तुम नाइट में हो? जी सेठ जी। गोदाम में माल आता जाता है तब तुम वहीं होते हो? जी सेठ जी। तो सामान चोरी हो रहा है तुम्हें पता है? नहीं सेठ जी। तो क्या सो जाते हो? ऐसे तो नहीं है सेठ जी, अब फिर भी कभी कभी आंख लग जाती है। ठीक है, तो आज से तुम्हारी ड्यूटी दिन में कर देते हैं, तो ये सोने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जी सेठ जी, आप हमारे माई बाप हैं, आप जैसे रखेंगे ऐसे हम रहेंगे। हमारा क्या है, चाहे रात में काम करो चाहे दिन में काम करो, जिसे काम करना ही है उसे रात क्या और दिन क्या, वो तो अपना काम कर ही लेता है। ठीक है मैनेजर, कल से इनकी ड्यूटी दिन में कर दीजिए। जी सेठ जी। और रात के लिए एक दूसरा वॉचमैन रख लीजिए ताकि सब ठीक ठाक चले, और चोरी भी बंद होनी चाहिए। सुनिए जी, पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। जी सेठ जी। क्यों मैनेजर साहब, अब शांति है ना? क्या बताऊं सेठ जी, नाइट वॉचमैन की बदली करने पर भी पहले की तरह ही चोरी हो रही है। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? जी सेठ जी, हमेशा की तरह पुलिस आती है, काम करने वालों को डांटती है, तहकीकात करती है, क्या कितना सामान गया उसकी लिस्ट बनाती है और सबको डरा धमका कर चली जाती है। ऐसे फिर से कंप्लेंट होती है और फिर से सारी कार्रवाई होती है, मगर नतीजा कुछ भी नहीं आता। मैनेजर, आपको पता है, नहीं करते 12 महीने हो गए और ये सब ऐसे ही चोरियां हो रही है।
जी सेठ जी। चोर चोरी करते हैं, वो उनकी मजबूरी है, पर जो साहूकार चोरी करते हैं वे तो चोर से भी गए गुजरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये साहूकार का नकाब पहनकर समाज को लूट रहे हैं। साहूकार बनकर चोरी करना तो सरासर गलत है। उनसे तो अच्छे चोर हैं, जो चोरी ही करते हैं और कहते भी हैं कि हम चोरी करते हैं, चोरी हमारा काम है। और साहूकार चोर से भी बड़े गुनहगार है। साहूकार चोर से भी बड़े गुनहगार हैं? हाँ, मुखौटा साहूकार का और काम चोरों का। ये साहूकार अपने कॉन्ट्रैक्टर के धंधे में भी है और साहूकार बनकर चोरी भी करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर के काम में चुपके से सीमेंट निकाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं सेठ जी, सीमेंट की चोरी? हाँ, सीमेंट की चोरी, यानी जैसे मनुष्य के शरीर से ब्लड निकाल लेना। और ऐसे ही वो साहूकार लोहा भी निकाल लेते हैं। यानी कि लोहे की चोरी? लोहा निकालना मतलब के शरीर की सारी हड्डियां निकाल लेना। हाँ, हड्डियां निकाल ली और ब्लड निकाल लिया तो शरीर में रहा ही क्या। इसीलिए साहूकार चोर से भी बड़े गुनहगार है। साहूकार होकर चोरी करना इन्हें शोभा नहीं देता। उससे भी अधिक जो मिलावट करते हैं वो साहूकार से भी कई गुना बड़े गुनहगार है। उसे पता ही नहीं है कि मैं जो गुनाह करने जा रहा हूं उसका फल क्या मिलेगा। वो बेहोशी की आलम में अपनी मति खोकर गुनाह करते रहते हैं। बुरी आदतों का अंजाम बुरा होता है सेठ जी, ये उन्हें पता ही नहीं है क्या? उस वक्त सिर्फ पैसा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। ऐसे लोग तो अच्छे भले आदमी को भी बुरा काम करने के लिए उकसाते हैं। वो कैसे भला? मानो कोई सीधे साधे आदमी का दूध का धंधा है और उसके दूध के धंधे में कोई खास कमाई नहीं है, तो लोग उसे कहते हैं कि अरे भैया लल्लन, पता है तुम्हें, ये तुम्हारे बाजू वाला बहुत पैसा कमा रहा है। उसका भी तुम्हारी तरह दूध का ही धंधा है। उसकी आमदनी देखो तो ढेर सारी, और तुम्हारी आमदनी नहीं के बराबर है। हाँ भैया गोपाल, ये कम आमदनी से तो हम भी बहुत दुखी हूँ। हमरी भी समझ में नहीं आता कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। अरे भैया, का करूँ से कुछ नहीं होगा। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप ही कुछ रास्ता बताइए ना। अरे भैया लल्लन, कुछ सोचो। अगर उसके जैसा पैसे वाला बनना है तो कुछ सोचो। अरे क्या सोचे भैया, हमरा तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे भैया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, धंधे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है ना। सच कहता हूँ, उसमें कोई पाप नहीं है। अरे अरे, क्या कह रहे हो भैया? अगर पुण्य ना हो सके तो कोनो बात नहीं, लेकिन पाप तो नहीं करना चाहिए ना। अरे भैया लल्लन, वो तुम्हारे बाजू वाला दूध के धंधे में बहुत सारा मुनाफा कर रहा है। ओ कैसे? अब वेरी सिंपल, दूध में पानी मिलाकर। का? दूध में पानी मिलाकर इतना सारा रुपया कमा सकते हैं? अरे काहे नहीं कमा सकते हैं। तो ज्यादा पैसा कमाना है तो का हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? अरे लल्लन भैया, दुनिया में सिर्फ पैसा ही चलता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, तरक्की करनी है तो खूब पैसे कमाओ, खूब मौज मनाओ। हाँ भैया गोपाल, आपकी बात तो हमको सच लग रही है। आज से हम भी आपके बताए हुए रास्ता पर ही चलूंगा और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाला मैं ही कहलाऊंगा, फिर चाहे दूध में पानी मिलाकर के ही सही। ये हुई ना बात। हाँ। आखिर भैंस गई पानी में। नहीं, उसके संस्कार गए पानी में। वाह सेठ जी वाह, क्या मिसाल दी है आपने। मैं तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच।
जो कायदे तोड़ने वाले, जो दंगे करने वाले, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए हम हैं पुलिस, हम हैं पुलिस, हम हैं पुलिस। जो कायदे तोड़ने वाले, जो दंगे करने वाले, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए हम हैं पुलिस, हम हैं पुलिस, हम हैं पुलिस। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, निर्भय बनूंगा तथा धर्म के रास्ते चलूंगा। मैं देश की जनता की सेवा करूंगा, संविधान का संरक्षण करूंगा तथा उसका पालन करूंगा। मैं पुलिस विभाग के पदाधिकारियों का सम्मान करूंगा, उनके आदेशों का पालन करूंगा। जय हिंद। कोई भी हो त्योहार, पुलिस है तैयार, पुलिस है तैयार। मंत्रीगण, नेतागण, VIP, VVIP सबके लिए रहती है तैनात। कोई भी हो त्योहार, पुलिस है तैयार, पुलिस है तैयार। मंत्रीगण, नेतागण, VIP, VVIP सबके लिए रहती है तैनात। सुव्यवस्था के लिए, सुख शांति के लिए, सुव्यवस्था के लिए, सुख शांति के लिए हाजिर है जनता के लिए हम हैं पुलिस, हम हैं पुलिस, हम हैं पुलिस, हम हैं पुलिस। सलाम साहब। सलाम। आप हो अंबालाल पटेल? हाँ जी। और आप? पुलिस ऑफिसर अहमद। लोग हमें अहमद मियां कहते हैं। आप कैसे फंस गए? पर आपको कैसे पता चला कि मैं फंस गया हूँ? हम आपको पहचानते नहीं हैं तो क्या हुआ? बिल्ली को चूहे की बात आती है कि नहीं? जी आती है। ऐसे ही हमें भी चोर की बात आ जाती है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने चोरी नहीं की। आपने चोरी की होती तो हमें बात आ ही जाती कि ये आदमी ने चोरी की है। अब इसमें क्या हो सकता है? आपकी बात जाने बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए, एक्चुअली हुआ क्या था? कैसे मुसीबत में आ गए? बताइए, सारी बात बताइए। ठीक है, तो सुनिए। अंबालाल जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंबालाल जी, हमारा एक काम करेंगे? कहिए, क्या काम है? मेरे पास पत्रे हैं, उसे रखने की जगह नहीं है। कुछ समय के लिए आप अपने बिटको इंजीनियरिंग कंपनी में रखने देंगे? जगह मिलते ही हम ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। कितने पत्रे हैं? पत्रों से भरी हुई कुछ 6 पेटियां हैं। अच्छा, कहाँ से लाए? कंट्रोल में से लाया हूँ। ठीक है, मैं मेरे पार्टनर को चिट्ठी लिख देता हूँ, वे तुम्हें रखने देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंबालाल जी। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय के आगे झुकना पड़े, समय के आगे झुकना पड़े, चाहे वो हो बल वाला रे भाई।
क्रॉस पे यीशु को चढ़वा दिया, क्रॉस पे यीशु को चढ़वा दिया, जो सबका था रखवाला। महावीर प्रभु ने कष्ट सहे, महावीर प्रभु ने कष्ट सहे, उनके ध्यान में संकट डाला। समय के फेरे में आए सभी, हो समय के फेरे में आए सभी, चाहे राम हो मुरली वाला रे भाई। समय का खेल निराला, समय का खेल निराला। सेठ जी, विजिट करने सरकारी लोग आए हैं। इन्फॉर्म किए बिना ही? जी सेठ जी, क्या कर सकते हैं, सरकारी बाबू हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ बुलाइए। जी सेठ जी। अरे आइए आइए साहब, आइए, बैठिए। कहिए क्या सेवा करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बताइए कि पत्रे कहाँ से लाए? ओहो वो पत्रे की पेटियां? हाँ। अरे साहब, वो तो हमारी पहचान में है। उन लोगों की है, वे बाहर गांव रहते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही रख कर गए हैं। क्या कीमत मिली? कुछ भी कीमत नहीं। तो इसे रखने की परमिशन ली है? परमिशन लेनी होती है? ऐसे सामान रखने के लिए परमिशन बहुत जरूरी है। अच्छा? कानूनन इसे आप यहाँ ऐसे ही नहीं रख सकते, इसे हम हमारे कब्जे में लेते हैं। लीजिए, हमें क्या, माल हमारा है ही नहीं, तो हमें फिक्र किस बात की? इसकी परमिट कहाँ है? हमारे पास नहीं है, जिसका है वो ही जाने। इसे कोई हाथ न लगाए, अब ये सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है साहब। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। अंबालाल जी, नमस्कार नमस्कार। अरे जयराम भाई, आप, वो भी 1 साल बाद। क्या करें अंबालाल भाई, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए, आखिरकार गाड़ी लेकर आया हूँ, तो पत्रों की पेटी ले जाता हूँ। सरकारी बाबू आए थे, उन्होंने वो पेटियां उनके कब्जे में ली है। उसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? परमिट ढूंढ रहे थे। हाँ ठीक है, परमिट हमारे पास है, हम अभी उनको दिखाकर माल उठाते हैं। चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार। अंबालाल जी, ये सब क्या है? वो पत्रों की पेटियां कहाँ हैं? जिसकी थी वो ले गए। ले गए? हमने आपको कहा था ना कि इन पेटियों को कोई हाथ ना लगाए, उसके बावजूद आपने उन लोगों को पेटियां उठाने दी। एक तो परमिट भी नहीं है। नहीं, परमिट तो उनके पास था। वे लोग आपके दफ्तर में परमिट दिखाने आए थे, बाद में यहाँ से वो पेटियां ले गए। सब गलत, सब बनाने के धंधे हैं। हमें तो लगता है कि आपने इन पेटियों का बढ़िया दाम मिलने पर बाहर ही बाहर माल बेच दिया। बेच दिया? जी देखिए, हमने कुछ बेचा नहीं है। आपने कुछ बेचा नहीं तो माल गया कहाँ? जो ले गया वही जाने। कुछ अजीबो गरीब खिचड़ी पक रही है, आप कुछ समझे? जी देखिए, आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। अंबालाल जी, उन लोगों ने आपको फंसाया है। ऐसा है? ठीक है, तो हम आपको उनका नाम और गांव बताते हैं, आप तहकीकात कीजिए। ठीक है। सीधे सादे इंसान को धोखा देने वालों। ये अंबालाल मुलजी भाई पटेल कौन है? जी मैं हूँ, कहिए। वारंट है।
अंबालाल मुलजी भाई पटेल का वारंट है। वारंट है? आपके नाम का वारंट निकला है। वे लोग कहते हैं कि वो पेटियां उन लोगों की नहीं है और उन लोगों ने यहाँ से उठाए भी नहीं है। इसका मतलब आपने सरकारी सामान को बेच दिया है। तो चलिए पुलिस स्टेशन। जी देखिए, हमने कोई सामान बेचा ही नहीं है। सुनिए, जो कुछ कहना है वो पुलिस स्टेशन में आकर कहिएगा। सीधे सादे इंसान को धोखा देने वालों, सीधे सादे इंसान को धोखा देने वालों, एक दिन ऐसा आएगा सब हाथ मलते रह जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा सब हाथ मलते रह जाओगे। सीधे सादे इंसान को धोखा देने वालों। तो सीधे सादे इंसान को फंसाने का चक्कर है। बहुत हेरा फेरी हो गई। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। छोकरा, यहाँ पर आओ। नहीं सेठ जी, आप नहीं देंगे। अरे काम मेरा है और ऊपर से चाय भी आप ही पिलाएं, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इस माया नगरी में सेठ जी। हाँ, सचमुच फंस गए हैं इस माया नगरी में। आपकी बातें सुनकर, आपको देखकर मुझे कुछ महसूस हो रहा है। जिंदगी ने हंसाया तब समझा कि ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। जिंदगी ने रुलाया तब मैं समझा कि ये अब कुछ अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। वाह 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 वाह। हाँ, जागे तब से सवेरा। जागृति ही इंसान को जागरूक रखती है। फिर भी एक रास्ता है। कौन सा? सिटी मामलतदार को खबर कीजिए और बिन वारिस मिल्कियत के कागजात बनवा लीजिए। पर इससे क्या होगा? ये सारा केस मामलतदार के पास जाने से आपके ऊपर फौजदारी गुनाह लगा है वो उड़ जाएगा। अच्छा। और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच अहमद मियाँ। अहमद मियाँ, एक बात बताइए कि मैं चोर नहीं हूं, वो किस बात से आपने पहचाना? वो तो दिल का आईना चेहरा है, उसमें भी जो आंखें हैं वो सारी बातें बता देती है। क्या गलत है, क्या सही है। सच कहता हूं, मुश्किल नहीं है। बस किसी को पहचान सको, ये अपने आप में काबिलियत होनी चाहिए। भरोसा इतना करो कि उसमें कोई शक ना हो। भरोसा इतना करो कि उसमें कोई शक ना हो। इंतजार इतना करो कि उसमें कोई वक्त ना हो। वाह 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 वाह। और प्यार प्यार इतना करो कि उसमें कोई नफरत ना हो। वाह वाह। समझ गए ना बरखुरदार? जो हो गया या जो हो रहा है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस अच्छा संजोग आए ऐसा हम केवल भाव कर सकते हैं। हाँ, ये लाख रुपए की बात कही। चलिए, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। संजोग के आगे इंसान हाय बेबस होकर रहता है।
संजोग के आगे इंसान हाय बेबस होकर रहता है। अच्छे संजोग के लिए भाव ही कर सकता है। अच्छे संजोग के लिए भाव ही कर सकता है। संजोग के आगे इंसान। अरे अंबू भाई पाठक, आप कब आए? अब ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हैं अंबालाल जी, इतना इंतजार तो हम कर ही सकते हैं। आपसे कॉन्ट्रैक्टर के लाइन का अनुभव जानना है और सीखना है। कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? जी हम तो पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन? वो पत्रों की पेटी वाले मामले में हम फंस गए थे। फौजदारी गुनाह से बचने के लिए अब मामलतदार से मिलना होगा। अच्छा, ऐसी बात है तो अंबालाल जी आपका काम हो गया समझ लीजिए। पर वो कैसे? मेरे चाचा परसों ही नवसारी से यहाँ मामलतदार बनकर आए हैं। मगर इस काम में बहुत गुत्थी है। मेरे चाचा सारी गुत्थी सुलझा देंगे। इस गुत्थी के जो भी कागजात हैं वो मुझे दीजिए। मेरे चाचा को हाथों हाथ देकर आता हूँ और नए कागजात बनवा लेता हूँ। एक बार वो कागजात आपके हाथ में आ गए तो मानो आपको क्लीन चिट मिल गई। आओ जो। नियत अच्छी हो तो इंसान का बिगड़ा काम भी बन जाता है। बुरी मुरादे वालों का बुरी मुरादे वालों का अंजाम बुरा होता है। नियत अच्छी हो तो इंसान का बिगड़ा काम भी बन जाता है। बिगड़ा काम भी बन जाता है। बिगड़ा काम भी बन जाता है। ये लीजिए अंबालाल जी, आपका काम हो गया। मेरे चाचा जी ने सारा केस रफा दफा कर दिया। कुछ 1000-1500 का खर्चा आया होगा नहीं? 1000-1500 का खर्च? अंबालाल जी 4 आना भी नहीं देना पड़ा, ऐसे ही सब काम हो गया। हाँ? थैंक यू पाठक, थैंक यू वेरी मच। उसमें थैंक यू जैसी कोई बात ही नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। जो यूं आने के वाय आतो धर्म करता धाड़ पड़ी। मतलब? करने गए भलाई और हम ही गुनहगार साबित हुए। आज भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आज के इंसान को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कौन सही, कौन गलत, कौन अपना, कौन पराया। सचमुच अपने पहचान में थे तो अपने कारखाने में पतरे रखने की जगह दी तो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। अपनी नीयत बुरी न होने पर भी ऐसी नौबत आ गई। अंबालाल जी, ओळखी तो बेगोदा वधारे मारे। आपने ऐसे लोगों को मंजूरी क्यों दी? ऐसे लोग पतरे की जगह कोई बॉम्ब रखकर जाते तो तौबा तौबा, पूरा सत्यानाश हो जाता। आज से कोई सामान रखने की बात करेगा तो मैं तो सीधा मना ही कर दूंगा। पाठक, रखने देंगे ऐसा निश्चय भी नहीं करना चाहिए और नहीं रखने देंगे ऐसा निश्चय भी नहीं करना चाहिए। केवल मोक्ष मार्ग में ध्यान रखना चाहिए। कुदरत ने जो चाहा वही होकर रहता है, वो ही हमें रास्ता दिखाती है। इसलिए अपनी सारी चिंता प्रभु की शरण में। अंबालाल जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी जगह स्थिर हैं। सामने वाला चाहे कुछ भी करे, लेकिन आप अपने उसूल से एक तिनका भी नहीं हिले। आपकी इतनी दृढ़ता देखकर कहूंगा, अंबालाल जी आप महान हो। अरे
ग्लूकोज लाओ, इंजेक्शन लाओ, दवाई गोलियां झटपट ले आओ। ग्लूकोज लाओ, इंजेक्शन लाओ, दवाई गोलियां झटपट ले आओ। एनेस्थीसिया बुलवाओ, ऑपरेशन करवाओ, आईसीयू में पेशेंट को जल्दी रखवाओ। स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल नर्स, स्पेशल वार्ड बॉय, स्पेशल रूम, ये सब करते करते घर वाले हो जाए मेंटल। स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल नर्स, स्पेशल वार्ड बॉय, स्पेशल रूम, ये सब करते करते घर वाले हो जाए मेंटल। हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, कार्डियोग्राम, एक्सरे और एमआरआई, लिपिड प्रोफाइल और खून जाने करवाए कितने टेस्ट, अंत में रिपोर्ट देख के डॉक्टर कहेगा अरे भाई, इनका तो सब कुछ है बेस्ट। तो क्यों करवाया बेकार में टेस्ट? अरे भाई, इनका तो सब कुछ है बेस्ट। तो क्यों करवाया बेकार में टेस्ट? ये तो करना पड़ता है, तुम ना हो सेंटिमेंटल। ये तो करना पड़ता है, तुम ना हो सेंटिमेंटल। हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल। कैसे हो अंबालाल भाई? ठीक हूँ, आप बताइए। मैंने सुना हीराबा की आंखों में कुछ। हाँ, वो आंख में झामर जैसा हो गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। उसी ऑपरेशन में उनकी एक आंख गई। ओह, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अंबालाल भाई, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी एक संघर्ष है, इसीलिए अपने जीने का अंदाज मत खोना। संसार है, संसार में ये सब चलते ही रहता है। तो अब आगे जीवन कैसे जियोगे? आगे का जीवन? हाँ हाँ, बस आगे का जीवन वन उपवन घूम कर जी लेंगे। अरे, आप तो अभी से सन्यासी जैसा सोच रहे हैं। आगे तो बहुत जिंदगानी बाकी है। अरे, चेक जिंदगानी का कैश कर लीजिए, जब तक जवानी है ऐश कर लीजिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे यही कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, 35-36 के होंगे। आप आज भी दूल्हे राजा बन सकते हैं अंबालाल जी। आप किसी राजकुमार से कम थोड़े ही हैं। आपके साथ तो कोई भी लड़की घर बसाने को तैयार हो जाएगी। देखो ना, मेरे साले की लड़की तैयार ही है। आपकी हाँ हो तो मैं चुटकी बजा के बात जमा सकता हूँ। हम एक दूसरे के लिए अनजान तो है नहीं। हाँ हाँ, भादरण गांव के लोग एक दूसरे से अनजान कैसे हो सकते हैं भला? देखा देखा, क्या संजोग है। मैं भी भादरण का और आप भी भादरण के। इसीलिए मैं यहाँ उनका रिश्ता लेकर खास आपके पास आया हूँ। मेरे पास क्यों? अभी आपको दूसरी शादी के लिए सोचना चाहिए। दूसरी शादी? अंबालाल जी, एक बूंद से कभी सागर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दिल में दुनिया जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मतलब? आपको शादी करने के लिए दो कारण हैं। एक तो हीराबा की आंख गई है और दूसरा आपकी कोई प्रजा भी नहीं है। हाँ, प्रजा भी नहीं है और कोई स्टेट भी नहीं है। बड़ौदा स्टेट जैसा होता तो प्रजा को काम आता। ओहो हो, अंबालाल भाई, आप प्रजा का मतलब समझे नहीं।
अरे आपको कोई प्रजा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई संतान नहीं है। संतान भी नहीं और हीरा बाप की एक आंख गई, इसीलिए दूसरी शादी तो बनती है। नहीं, दूसरी शादी तो मैं सोच ही नहीं सकता। हाँ? अब रही हीराबा की बात, उनकी एक आंख चली गई तो क्या हुआ? अगर दो भी चली जाती तो उनका हाथ पकड़कर मैं उनका साथ देता, मैं उनकी आंखें बंद कर रहता। अब तो मुझसे हो सके उतनी उनकी सेवा करनी है। ब्याह के वक्त उनके हाथ में हाथ रखकर प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस देने के बाद मुकरना मैंने बिल्कुल सीखा नहीं है। सबकी मौजूदगी में मैंने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस के लिए ये एक अवतार क्या चीज है? इसलिए ये सारी जिंदगी हीराबा के नाम। हम क्षत्रियों का वचन अफर रहता है। परण्या एटले प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस यानी प्रॉमिस। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हीराबा, कैसी है तबीयत? ठीक है, ठीक है। आंख को आराम है। आप यहाँ आंखों को आराम दे रही हैं और अंबालाल, देखिए वो अपनी आंखों को कष्ट दे रहे हैं। क्यों अंबालाल, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं। पढ़ रहे हो? वो भी इतना नजदीक से? मुझे लगता है आपको बेताला आया है। मतलब आप 42 साल के हो गए हैं, इसलिए आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आपको जरूर नजदीक के चश्मे आए होंगे। चलता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है। आप ऐसे ही चला रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए चश्मा लेकर आया हूं। लीजिए, और आप इस चश्मे से पढ़िए। वाह, बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। वाह कांतिलाल, वाह। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मुझे बेताला आया है, तो मैं कहता हूं कि जो आया है वो जाने के लिए आया है। ये सब हमेशा के लिए नहीं है। फिर ये चश्मे की झंझट क्यों? अरे अंबालाल, अभी तो पहनिए, बाकी की बात बाद में। अरे वाह अंबालाल, आपका चश्मा तो बहुत बढ़िया है। आपको पसंद है? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। तो लीजिए, आप पहनकर देखिए। अरे वाकई बहुत अच्छा दिखता है। हाँ, तो आप ले जाइए। वाह अंबालाल, वाह, धन्यवाद। देखा हीराबा, मेरा काम हो गया। मैं न कहता था, जो आया है वो जाने के लिए आया है। जब से मैंने चश्मा पहनना बंद किया, तब से आज तक चश्मे की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। बिना चश्मे के भी अच्छा दिख रहा है। मुझे पता है, सबको खुशी देने में ही आपको खुशी मिलती है। एजी, आजकल आपके सभी दोस्त और जरूरतमंद यहाँ दिखते नहीं हैं। हाँ, मैंने ही उन लोगों के साथ मेलजोल करना कम कर दिया है। ऐसा क्यों? हमें मोक्ष की ओर जाना है, तो फिर ये माया से मुक्ति पानी होगी ना। माया तो तुम्हारी ही दी हुई है ना? थी, पर अब वो नहीं है। कैसे?
मेरे पास रुपए थे, जब तक सबको उधारी दी, मदद भी की, दोस्तों और गैरों की भी। तो आपके रुपए मांगने में क्या शर्म? अगर मैंने रुपए मांगने शुरू किए तो वो लोग मुझे जैसे तैसे करके रुपए दे देंगे और फिर से उधारी मांगने आते रहेंगे। ऐसा व्यवहार चालू रखने से तो अच्छा है उनसे मांगना ही बंद कर दें, तो ये लेन देन का व्यवहार भी बंद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी चलता है। फिर भी मांग कर तो देखिए। छोड़ो भी, 5,000 देंगे और 10,000 लेने आएंगे। उससे अच्छा अपने 5,000 उनके पास रहेंगे तो ये सारे लेन देन का चक्कर समाप्त हो जाएगा। ऐसा है तो उसको फायदा ही फायदा है। हाँ, तुम्हारी बात सच है। वो फायदे के लिए मुझे कभी रास्ते में दूर से देख लेते हैं तो रास्ता ही बदल देते हैं। तब आपको दुख नहीं होता? हाँ, मैं सोचता हूँ कि चलो इनसे छुटकारा मिल गया, मुझे इन सबको छोड़ना ही था। और वो लोगों ने भी देखो ना, मुझे छोड़ भी दिया। कितनी अच्छी बात है ना? मगर आपको तो दोस्त बहुत अच्छे लगते थे, है ना? हाँ, मैं वो टोली में किस लिए शामिल हुआ था पता है? नहीं, क्यों? मान पान मिले इसलिए। अंदर से मोह था, कोई मुझे मान से देखे, मान से बात करे, भरपूर सम्मान दे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर बाद में समझा कि मुझे इन सब बातों से बाहर निकलना चाहिए। तो देखो ना, अपने आप अंत आ गया। अब कोई आता भी नहीं है, सब अपने आप बंद हो गए। अच्छा, तो क्या किसी ने रुपए भी वापस नहीं दिए? हाँ, उसमें से 2-4 लोग आकर अपने आप दे गए। उनको भी मैंने कह दिया, भाई साहब, अब मैंने सारा व्यवहार हीराबा के हवाले कर दिया है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, आपकी बात सच है, लेकिन कभी अपने रुपए मांगने गया और वहां उनकी हालत देखकर मैं कुछ न कुछ देकर आया हूं। तब से मैंने मांगना ही बंद कर दिया। अच्छा है, इसीलिए उन्होंने मुंह दिखाना बंद कर दिया। और वो ही मैं चाहता था। भलू थयू भांगे जंजाल, सुखे भजीशु श्री गोपाल। काका जी, हम लोग ब्यारा सोनगढ़ क्यों आए हैं? हम लोगों ने यहाँ लकड़ी का बिजनेस शुरू किया है। अपनी 100 मिल भी है। हर 2-3 महीने में हमें यहाँ का कारोबार देखने आना पड़ता है। काका जी, आपने यहाँ के जंगल देखे? नहीं, पर क्यों? जंगल देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है। हाँ? क्यों? वहाँ एक बाघ डुंगरी नाम की जगह है, जहाँ बाघ अक्सर झरने में पानी पीने आता है। अच्छा, ऐसा है तो हम उसे देखने चलेंगे। क्या काका जी, आप भी? कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और एक आप हो कि वहाँ उसे देखने जाना चाहते हो। अरे वहाँ कोई गलती से चला भी जाता है तो जल्दी से वापस लौट आता है। ऐसी जगह आप क्यों जाना चाहते हैं? कई टाइम से मेरे हृदय में प्रकाश हो रहा है। शायद ज्ञान प्रकट होगा, पर अब तक प्रकट नहीं हो रहा।
मैं कई टाइम से महसूस कर रहा हूं कि ज्ञान की ज्योत जगमगा रही है, दिव्य प्रकाश फैल रहा है, अच्छे शगुन हो रहे हैं, मानो ज्ञान प्रकट होने का संकेत मिल रहा है। हाँ, पर ज्ञान प्रकट ही नहीं हो रहा। तो ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, उसका हमें टेस्ट करना चाहिए। मुझ में ना तो भूतकाल की बातों का कोई डर है और ना ही भविष्य काल की बातों का कोई डर। जैसे किसी का घर 20 साल पहले जलकर राख हो गया हो और उस बात को कोई याद दिलाए तो उस वक्त की भयानक घटना का डर आज भी उन्हें डराता है। पर मुझ पर ऐसी बातों का असर इतना सा भी नहीं होता। मैं तो कहता हूं ये सभी दुनिया वाले भविष्य काल के डर में फंस कर रह गए हैं, पर मुझे भविष्य काल से भी कोई डर नहीं। हाँ, लेकिन वर्तमान भय का मुझे पता नहीं, इसलिए हम टेस्ट लेना चाहते हैं। क्यों? उसकी क्या जरूरत है? कोई मुझे पूछे तुम्हें डर लगता है तो मैं क्या जवाब दूंगा? टेस्ट किए बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए चलो वाघ डुंगरी वाली जगह पर चलते हैं। हाँ चलेंगे, लेकिन यहाँ के जानकार लोगों को साथ लेकर चलेंगे। हाँ, अवश्य अवश्य। उनकी वजह से ही हम जंगल में सही स्थान पर पहुंच सकेंगे। देखिए काका जी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है झरना, जिसे बाघ डुंगरी कहते हैं। अब क्या करें? अरे वाह, बाघ डुंगरी पहुंच गए। तो चलो रणछोड़ भाई, मुझे अकेला छोड़कर आप सभी यहाँ से वापस चले जाइए। किंतु परंतु कुछ भी नहीं, आप सभी जा सकते हैं। मैं यहाँ अकेला बैठकर बाघ के आने का इंतजार करूंगा। चलिए जाइए जाइए जाइए। हाँ, अरे इस बाघ डुंगरी की जगह तो बड़ी भयानक लगती है। डर लगने लगा है। ऐसे में सचमुच बाघ यहाँ आ गया तो? नहीं, मेरे साथ आए थे वे भी वापस चले गए हैं। अब मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा? रणछोड़ भाई, रणछोड़ भाई, सब लोग आ जाओ। हाँ काका जी, हम लोग आ रहे हैं। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। हाँ काका जी, कहिए क्या हुआ? मुझ में से अभी तक वर्तमान का डर गया नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा। बस उस दिन के बाद दादा भगवान यानी अंबालाल पटेल ने अपने आप से खुद को जुदा कर दिया। मैं आत्मा हूं और ये आत्मा शरीर से भिन्न है। अब मुझे डर से कुछ लेना देना नहीं है। ये किस्सा हुआ सन 1957 में और ठीक 1 साल के बाद एक ऐसा संजोग निर्माण हुआ कि
जून का महीना सन 1958 में दादा भगवान यानी अंबालाल पटेल और उनके सेवक अणखी गांव के रणछोड़ भाई पटेल सोनगढ़ ब्यारा से आगे जाती हुई तपती ट्रेन से सूरत स्टेशन उतरे। दादा भगवान रात्रि भोजन नहीं करते थे, इसलिए सूर्यास्त से पहले ट्रेन में ही खाना खा लिया। सूरत उतरकर बड़ौदा जाने के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजार करना था, इसलिए दादा भगवान सूरत स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गए। वहां एक बेंच पर जाकर बैठ गए और उनके सेवक रणछोड़ भाई खाने पीने के बर्तन साफ करने गए। शाम के 6 बज रहे थे। उस समय कुदरत ने अंबालाल पटेल में अध्यात्म मार्ग का सृजन किया। उससे दादा भगवान को ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान दर्शन हुआ, विश्व दर्शन हुआ। सारे ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, जल, थल, आकाश, पाताल सभी का बारी बारी दर्शन कर रहे थे। जगत के सारे आध्यात्म प्रश्नों के उत्तर देख रहे थे। जगत क्या है, किस प्रकार चलता है, हम कौन हैं, ये सब कौन है, कर्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति का उपाय क्या है, ऐसे कई प्रश्नों के हल देख रहे थे। उस समय सूरत स्टेशन पर चारों ओर भीड़ भाड़ थी, चहल पहल थी, शोरगुल था, पर दादाजी को उस समय कोई भी संजोग या किसी भी प्रकार से उन्हें कोई मुसीबत तकलीफ जैसे कुछ लगा ही नहीं। बस वे अपने निजानंद में सहज रूप से जो ज्ञान प्रकट हुआ था उसी में रम्माण थे। इस प्रकार सन 1958 में अंबालाल पटेल में ज्ञान प्रकट हुआ और ज्ञान के 4 साल बाद सन 1962 में चंद्रकांत भाई द्वारा अंबालाल पटेल ही ज्ञानी पुरुष हैं ऐसी पहचान लोगों के सामने आई। चंद्रकांत, मेरे भतीजे रणछोड़ की तबीयत कैसी है? दादाजी, आपको देखते ही, आपसे मिलते ही मेरे पिताजी की तबीयत अपने आप अच्छी हो जाती है। हाँ, शास्त्रों की बातें तुम ठीक से समझ गए? दादाजी, हमारी सोच इतनी सी है और आपकी सोच इतनी बड़ी है। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। श्रीमद राजचंद्र जी की धार्मिक बातों का गहन अर्थ आसानी से समझ में आए, ऐसा आपने समझाया है। दादाजी को ऐसे तो मैं कई बार मिलते रहता हूँ, लेकिन कुछ साल से दादाजी में बदलाव नजर दिख रहा है। क्या दादाजी सचमुच ज्ञानी पुरुष हैं? अगर वे हैं तो मेरा काम बन गया। चंद्रकांत, क्या सोच रहे हो? दादाजी, शास्त्रों में कहा है कि जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं मिलते तब तक आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। ज्ञानी से मिलने की इतनी जल्दी क्या है? मुझे ऐसा जानने में आया है कि मेरा आयुष्य बहुत कम है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा आयुष्य पूरा हो, उसके पहले मुझे ज्ञानी पुरुष मिले तो मेरा काम बन जाए। हाँ, ऐसी बात है तो चंद्रकांत, तेरा दादा ही ज्ञानी है। ये मेरे दादाजी ही ज्ञानी है, इस बात की पहचान क्या है? बड़ा असमंजस है। संशय का निवारण कैसे हो सकता है? चंद्रकांत, तुम ये सोच रहे हो ना कि तेरे दादाजी ही ज्ञानी हैं, तो उनकी पहचान क्या? हाँ,
हाँ जी, हाँ जी। तो तेरे संशय का निवारण ये है कि पहले तेरे दादाजी की आंखें देखना, उनका हंसना देखना और उनकी वाणी सुनना। जी। 5 लाख लोगों के बीच में तुम खड़े होकर मेरा अपमान करके देख लेना। जी। ऐसे ही 5 लाख लोगों में मेरी प्रशंसा भी करके देखना। ये सब करने में आंखों के भाव में कोई भी फर्क नजर आए या हंसने में कोई बदलाव नजर आए तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानी में किसी भी प्रकार का भिखारीपना ना हो, तभी उसे ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं। बस दादाजी, मेरा संशय दूर हो गया। मुझे प्रतीत है कि आप ही ज्ञानी पुरुष हैं। मेरे दादा ही मेरे लिए भगवान हैं, यानी आप मेरे लिए दादा भगवान हैं। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय हो, जय हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार 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 हो। ऐसे चंद्रकांत भाई अंबालाल पटेल को दादा भगवान कहने लगे, इसलिए लोग भी दादा भगवान कहने लगे और आज सारी दुनिया भी उन्हें दादा भगवान के नाम से जानती है। दादा भगवान ने सबसे पहले चंद्रकांत भाई को ज्ञान दिया, बाद में और 5 व्यक्तियों को ज्ञान दिया और कन्नू भाई को ज्ञान दिया। दादा भगवान के सबसे करीब व्यक्तियों में से थे चंद्रकांत भाई और कन्नू भाई। दादाजी कहते थे, हमें किसी की वाणी सुनने का दिल करे तो 2 व्यक्तियों की वाणी सुननी अच्छी लगती है, एक चंद्रकांत भाई और दूसरे कन्नू भाई, क्योंकि इन दोनों की वाणी बुद्धि से रटी हुई या शास्त्रों की नहीं है, किंतु स्वयं के आत्म अनुभव की वाणी है। दादाजी ने उस समय ये भी कहा था कि हम 701 व्यक्तियों को ज्ञान देंगे, उसके बाद आने वाले 701 व्यक्तियों को चंद्रकांत भाई ज्ञान देंगे, बाकी के 701 व्यक्तियों को कन्नू भाई ज्ञान देंगे। कुल 2100 को ज्ञान देना है, ऐसे हमने सोचा है। दादाजी कहते थे, हम तीनों कई जन्मों से साथ साथ घूम रहे हैं। पिछले कुछ 2-3 जन्मों से हम दूर हो गए थे, जो सब फिर से मिले हैं। दादाजी जब भी सत्संग होता था, तब चंद्रकांत भाई और कन्नू भाई का आसन ऊंचा रखवाते थे, ना रखा हो तो आसन ऊंचा करवाते थे। सत्संग में हमेशा अपने साथ बैठाते थे, इतना मान देते थे। दादा भगवान कन्नू दादाजी को इतना मान इसलिए देते थे कि कन्नू दादाजी में पवित्रता देखते थे, पारदर्शकता के दर्शन करते थे। ऐसे प्रत्यक्ष वर्तमान ज्ञानी पुरुष कन्नू दादाजी हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारे कल्याण मार्ग का हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमें मोक्ष का अधिकारी बनाया है, तो उनके द्वारा हमारा निश्चित मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है। जो भी मिले उसका भला हो, यही दाता का काम है। जो भी मिले उसका भला हो, यही दाता का काम है। जीना इसी का नाम है,
इसी का नाम है, जो भी मिले उसका भला हो, यही दादा का काम है। जो भी मिले उसका भला हो, यही दादा का काम है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम